प्यास नदी में बहे 24 इंजीनियर छात्रों के शवों के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है, जिसके चलते मंगलवार सुबह एक और छात्र का शव बरामद किया गया है। रविवार को हुए इस बड़े हादसे को लेकर उपायुक्त मंडी देवेश कुमार ने बताया कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के 22 लोग और 9 राफ्ट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के 100 जवान, सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल के 100 जवान, हिमाचल पुलिस के 100 सिपाही और गृह रक्षा विभाग के 25 जवान तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सर्च ऑपरेशन जारी है और जल्द ही अन्य शवों को भी बरामद कर लिया जाएगा। This unfortunate incident which happened about 1.5 days back here at Thalot in Mandi district. Yesterday, in our search and rescue operation, we were able to retrieve 4 bodies. Today morning, again, the search and rescue operation was started very early on, nearly with the first light, at about 6 a.m. in the morning. We have been able to retrieve another body today, taking the total to 5. All the 5 deceased have been identified. Out of these 5, 3 are females and 2 are males. 4 deceased yesterday, they were embalmed and were airlifted to their home bases. The 5th one has been received today. He is being embalmed in Mandi Zonal Hospital. I would also like to brief upon the search and rescue operation which has been launched for this particular incident. Right now, we have about 20 diving teams of Army, about 22 diving teams of NDRF, the National Disaster Response Force. We also have 9 boats, the NDRF, and about 62 personnel who are doing the foot patrolling. This is of NDRF. We have also the support of the Indo-Tibetan Border Police, that is IDPP. They have deployed 2 rafts. And apart from these rafts, 100 troops have also been deployed. We also have the support of the Sashastra Sena Bal, that is SSB. They also have deployed 100 troops. The state police, the Mandi police, they also have deployed 100 constables. And the Home Guards division have deployed about 25 personnel. We also have utilized the services of the local rafts, the local personnel. They are also being involved. Right now we are sitting in Pador Dam, where there is the highest possibility of the bodies having been washed down the flow of this Beas river. Upstream of this, there is a Largi Dam whose release of water caused all this damage. And upstream of that, there are the projects of NHPC. So from the water point of view, 3 projects are involved in this entire operation. The NHPC, which is controlling the Pavati project, and the Largi project, which is being run by the State Electricity Board. And then there is the Pador Dam, which is being controlled by the Bhagra Beas Management Board. The bodies having been lodged, that is near the boulders which have been identified, or other places where the water is very deep. These places have already been identified. Today morning,
the search operation, the water level had been reduced by about 4 feet at the Padur Dam, and we are still trying to reduce the water level even further as far as possible without damaging the tunnels or the dam itself. The Larji Dam is a barrage which has a very small holding capacity. Therefore, the water storage capacity is less, and because of that, water outflow cannot be decreased much. But still, we are trying our level best to provide all conducive conditions to the divers, the rafts, and the full patrolling which is going on both the banks of the Beas River, right from Thalod till the Padur Dam. This distance is about 15 kilometers. Out of this, 7.5 kilometers is of totally vertical side canyon. घटनास्थल पर तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से आए सांसदों ने भी मौके का जायजा लिया और थलौट हादसे में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे सर्च अभियान की विस्तृत जानकारी भी प्राप्त की। आंध्र व तेलंगाना के सांसदों ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि इस हादसे के लिए संस्थान प्रबंधन की भी गलती है। उन्होंने इस हादसे का शिकार हुए 24 इंजीनियर छात्रों के शवों को ढूंढने के लिए जारी किए गए सर्च ऑपरेशन को और गति देने के लिए पानी के प्रवाह को कम किए जाने का सुझाव भी दिया है। टूर को पिकनिक टूर में कन्वर्ट किया गया। ये तो पिकनिक सेंटर है, ये इंडस्ट्रीज नहीं है, ये इंडस्ट्रियल स्टडी नहीं है। तो कॉलेज मैनेजमेंट का ये गलती है। अगर ये पिकनिक सेंटर बोल के लेके आते तो ठीक है, पर इंडस्ट्रियल स्टडी बोल के लेके आए, इंडस्ट्रीज को नहीं बताए, ये पिकनिक लाए। वो इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी करने के बाद मैनेजमेंट के ऊपर क्या है, अच्छा बुरा है, उनके ऊपर एक्शन लेंगे। ये बिल्कुल आप लोगों का कहना सही है कि पिकनिक पे लेके आए, मगर ये दूसरा साथ उनके साथ तो जो है ज़्यादा टीचर्स को रखना चाहिए था। 48 मेंबर्स आए तो 3 फैकल्टीज हैं, 3 या 4 फैकल्टीज हैं। 10 मेंबर्स के फैकल्टीज को रख के अगर वो रहे तो वो कंट्रोल करके लाए तो अच्छा रहता था। थोड़ा मैनेजमेंट का लापरवाही है, और लापरवाही की वजह से ये गलतियां हो गए। यहाँ डैम पर्सन्स भी पानी विदाउट कार्नर, विदाउट नोटिस वो लोग पानी छोड़े। ये सबके कारण 25 फैमिलीज नुकसान हो गए, बह गए। वो नौजवान बच्चे और इंजीनियर बनने वाले थे, वो लोगों को, उनका फैमिली को काफ़ी नुकसान हुआ। उसी के बारे में सब लोग चिंता कर रहे हैं, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी वो लाशों को ट्रेस आउट करने के लिए। ये काफ़ी एजेंसीज के साथ अभी कलेक्टर साहब हम लोग मीटिंग किए, मिनिस्टर साहब सब लोग, वो तुरंत एक्शन पे जाके और पानी कम करने का भी डिमांड है। वो डाइवर्स बोल रहे, ये डाइवर्स करने जो पानी नहीं निकलना चाहिए, पानी को छोड़ना नहीं चाहिए बोल के उनका डिमांड है। ये सब के ऊपर सोच के तो जल्दी से जल्दी रिलीव करने का कोशिश कलेक्टर साहब तरफ से, यहाँ का लोकल मैनेजमेंट तरफ से, जो ISO लोगों के तरफ से सब कोशिश किया जा रहा। अगर आज शाम तक देखेंगे, फिर हम रिव्यू करेंगे। शाम तक देख के कितना ट्रेस आउट हो सकते, कितना लाशा मिल सकते, फिर बाद में हम लोग रात में बैठ के रिव्यू करके और इसके ऊपर क्या करना चाहिए, जरूरत पड़े तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रोच करके और कोई लेटेस्ट इक्विपमेंट कोई है हो सकता है तो वो लोगों को भी इन्वॉल्व करके जल्दी से जल्दी वो लाशों को निकालने का कोशिश करेंगे। नीचे जाके लाशों को ढूंढना चाहिए बोल के उनका कहना है। तो हमारे अभी रिव्यू में क्या हुआ, नीचे मट्टी है पूरा, हो सकता मट्टी में फंस गया या पत्थरों में फंस गया लाशेस। तो ये कल तो हुआ है, आज तक शाम तक कुछ लोग ट्रेस आउट हो जाएंगे, बाहर निकलेंगे बोल के कलेक्टर साहब और रिव्यू में ऑफिसर्स का सबका रिव्यू है। तो इसी वजह से आज तक देखेंगे, शाम तक देखेंगे कितना निकल सकता वो निकालने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं
विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा सहित सराज के विधायक जयराम ठाकुर भी मौजूद थे। उन्होंने इस दुर्घटना में मारे गए इंजीनियर छात्रों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि ये एक बड़ी दुखद घटना है। पानी में बहे शवों को सर्च ऑपरेशन के द्वारा जल्द से जल्द ढूंढा जा रहा है। अब ये दुखद घटना है और जब तक ये डेड बॉडी नहीं निकलेगी प्रदेश के लोग भी बेचैन हैं, यहाँ के स्थानीय लोग भी दुखी हैं और जो बच्चों के माता पिता हैं वो भी परेशान हैं। इसलिए जो व्यवस्था हुई है भारत सरकार द्वारा वो कार्य बड़ी तीव्र गति से चला है और विश्वास है कि और चाहते भी कि ये डेड बॉडी जो इसमें समाई वो निकले और उसी का काम चला है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये रहती है कि जब उस बांध में जो ये कोई ऐसी घटना होती है तो बड़ी मुश्किल से निकलती है। लेकिन जो भारत सरकार ने जो व्यवस्था की है, जो 2 टीमें भेजी हैं, वो कार्य बड़ी तीव्र गति से चला है और विश्वास है कि इसमें सफलता मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों के अनुसार कल से ही मैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन का खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और जो जैसा कि हमारे दूसरे प्रदेशों से बच्चे यहाँ पर आए थे और एक दुखद घटना हुई है, 2 प्रदेशों के बच्चे यहाँ थे और इंक्वायरी की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। प्रदेश सरकार की हमारी ये पूरी तरह से प्रयास रहेगा कि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो और इसके अंदर जल्द से जल्द इन बच्चों को ढूंढा जा सके, उसके लिए प्रयास भी किया जा रहा है। जैसा आपका प्रश्न था कि पानी को कम किया जाए, कल भी इस बात की चर्चा हो रही थी, परंतु आप जैसा जानते हैं यहाँ पर जैसा हम गेट खोलते हैं सिर्फ बाहर आने से उन बच्चों की दबने की संभावना है, जिस वजह से हमें जो टेक्निकली एडवाइस ABMP के माध्यम से लार्ज प्रोजेक्ट के माध्यम से हमें मिली है, हम उसी पे कार्रवाई कर रहे हैं। मैं समझता हूँ देरी हो सकती है, परंतु देरी के साथ साथ कहीं ज़्यादा देरी ना हो जाए उसका भी हमें ध्यान रखना है और इसके लिए हिमाचल सरकार पूर्ण रूप से इन बच्चों को ढूंढने का प्रयास करेगी और इसके अंदर जो भी कोताही हुई होगी किसी की माध्यम से भी मैं समझता हूँ उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। शवों को ढूंढने में लगी हुई सर्च ऑपरेशन की SSB की टीम के कमांडेंट संजीव ने बताया कि छात्रों के शवों को ढूंढने का सर्च ऑपरेशन दिन रात जारी है। उन्होंने विश्वास जताया है कि इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। कोशिश तो यही है कि हम लोग भी जल्दी से जल्दी इसको निकालें। कोशिश हमारी और कंटिन्यू हम लोग लगे हुए हैं, रात में लगे हुए हैं, लेकिन नाइट में तो आप लोगों को मालूम है कि ऑब्जर्वेशन तो वीक हो जाती है। फिर भी हमारे अपनी जो ड्रैगन लाइट्स है फिर भी हमने कंटिन्यूस 24 आवर्स तक लगे हुए हैं। तो आज दूसरा दिन है, अब तक सिर्फ 5 लाशें पूरी लाशें मिली, कितना टाइम लगेगा? देखिए अंदाज़ा तो नहीं कह सकते कुछ भी, क्योंकि टाइम लिमिट तो इसमें कुछ नहीं है। हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी रिकवरी हो और यही हमारी कोशिश जारी है। तो ये डैम अथॉरिटी से आपको कैसा कोऑपरेशन? हाँ, दे आर कोऑपरेटिंग, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी अपनी लिमिटेशंस है, कब तक पानी रोक सकते हैं, क्योंकि उसके पास डैम को भी टूटने का मेरा तो टाइम रिलीज़ है, उनको भी अपना करना पड़ता है। ये नेचुरल चीज़ें हैं, इसमें आदमी का कोई बस नहीं है। तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं, प्रेशर तो ऐसा सच हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये काम हो जाए, क्योंकि पेरेंट्स भी बहुत चिंतित हैं और चाहते हैं कि ये कम से कम बड़ी रिकवरी तो मिले और हमारी भी यही कोशिश जारी है कि हम भी किसी तरह से कंट्रीब्यूट कर पाएँ इस काम के अंदर। तो हमारा कोई बाकी दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है कि, लेकिन हम भी चाहते हैं, बीइंग ए ह्यूमन पर्सन, हम भी चाहते हैं कि वो काम जल्दी से जल्दी हो जाए। सर कितने जवान लगे यहाँ पे आपके? हमारे 2 कंपनीज़ हैं, मोर देन 100 जो है। एक्चुअली हमें मीडिया के थ्रू पता लगा इस बारे में और हम लोग तो के बीइंग ए फोर्स पर्सनल्स हम तो चाहते हैं कि एकदम से इसको जो है एग्जीक्यूट करें। तो एज सुन एज हमें पता लगा, हम तो नाइट में ही हम लोगों ने सर्च स्टार्टिंग कर दिया था। तो टोटल कितना लोग हैं? हमारी 2 कंपनीज लगी हुई हैं, मोर देन 100।
और हमें इसमें नहीं था कि हम लोगों ने मतलब जैसे एनडीआरएफ को कॉल किया जाता है या फलाना किया जाता है। तो हम अपनी एजेंसी हैं। कोई कॉल नहीं थी? नहीं, हमें कोई कॉल नहीं, हम तो